ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਣੀਆਂ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੇਲੜੀਆਂ ਤਿਨ ਦੁਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੇ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ ਰਤਨ ਜਵਹਿਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਬਾਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮਣੀਆਂ। ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਰ ਮਾਹਾਂ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਬਹਿਲ ਸਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੈਠਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਾਲਿਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ।
मन उसदी याद नाल मौलिया गया है, तन उसदी सेवा विच हरा भरा हो गया है। इस तरह साधुआं दी संगत विच बैठ के उन्हों याद कर करके उसदे कोल बैठ बैठ के हुण तन भी मौलिया गया है, मन भी मौलिया गया है। तन दे चों रोग निकल गए ने, मन दे चों सोग निकल गए ने। तन भी अरोग हो गया है, मन भी अरोग हो गया है। फिर साहब फरमान करते ने, तन मन मौलिया राम सौ संग साध सहेजणियां, साध जना ते बाहरी से रहन इकेलणियां। जो सतसंग तो वांझियां रह गईयां, गुरु दे चरनां तो विछड़ियां, वो परमात्मा तो भी विछड़ गईयां और इकलियां रह गईयां। इकल तन्हाई, मिलाप दा आनंद नहीं, विछोड़े दी तन्हाई है, तन्हाई दा विछोड़ा है, ये पीड़ है। साहब कहंदे ने, जो कलियां रह गईयां, तन्हा रह गईयां, प्रभु पति तो विछड़ियां हुई जीव स्त्रियां रह गईयां, तिन दुख न कबहू उतरै से जम कै वस पड़ियां। उन्हां दा दुख भुल के भी लैंदा नहीं, उतरदा नहीं, और अंजाम की होंदा है, जमा दे वस पै जांदियां ने। वो मुड़ मुड़ के जमना, मुड़ मुड़ के मरना, मुड़ मुड़ के जमना, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे, दुख लैंदा ही नहीं। हर जन्म और हर नवा दुख, इस तरह ही जिंदगी जो है चलती है। जो प्रभु तो विछड़ियां हुई जीव स्त्रियां रह जांदियां, तनहा ते कलियां रह जांदियां ने। देखने दे चाहे कितनी भीड़, कितना शोर शराबा, कितनी रंगदार महफिल होवे, परमात्मा दे मिलाप तो बिना मन दी तन्हाई मिटदी नहीं, मन दी बेचैनी मिटदी नहीं। हजारां दी भीड़ दे च भी कई दफा देखे है कि कल ही महसूस होती है, तन्हाई महसूस होती है। दरअसल मिलना ते अंतरीव है, ते अंतरीव मिलना प्रभु दा है। अगर प्रभु दा मिलाप हो जाए तो बयाबान जंगल दे च भी वो बड़ी रौनक दे च है, ते प्रभु दा मिलाप अंदरों होया ने तो बाहर वड्डी रौनक दे च भी वो एकांत दे च है। वो इकल्ला है, वो दुखत है, वो पीड़ित है। तिन दुख न कबहू उतरे से जम कै वस पड़ियां, जिनी राविया प्रभ अपना से दिसन नित खड़ियां। जिन्हां ने सत्संग विच प्रभु दा चिंतन कीता है, रमण कीता है, उहदे गुणां दी विचार कीती है, उते नित्ता प्रति खेड़े च ने, खुश ने, आनंदित ने, मगन ने। साहिब फरमान करते ने, रतन जवै हर लाल हर, कंठ ते ना जड़ियां। चूंकि वो कंठ दे राही प्रभु दे नाम दा उचारण करदियां ने, प्रभु दे गुणां दा उचारण करदियां ने। एक एक गुण मोती है, हीरा है, मूंगा है, नीलम है, पन्नम है, जवाहरात है, और मूंगा है, पुखराज है। मानो उसदा कंठ जो प्रभु दा चिंतन कर रहा है, उस अभ्यासी दा कंठ हीरियां नाल, लाला नाल जड़त है, रत्ना नाल मड़े होया है। ऐसे हार उसदे गल विच पए ने। दरअसल कंठ ने ही उचारण करना है, वाहिगुरु वाहिगुरु, फिर बाणी दा पाठ, फिर उसदे गुणां दा उचारण। अंतरीव मेल हो के जद ये सब कुछ उचारण होंदा है, वो गला शिंगारिया जांदा है। मानो उस गल विच बड़े सुंदर हार पए ने, रत्ना दे, हीरियां दे, मोतियां दे। रतन जवै हर लाल हर, कंठ तिना जड़िया, नानक बाछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया। साहिब कहते ने, जिन्हां परमात्मा दी शरण नसीब हो गई है, परमात्मा दे दर दियां ही बन गईयां ने, ईश्वर दे दर जोगा ही हो गईयां ने, मैं उन्हां दी चरनां दी धूड़ लोचदा, मंगदा उस परिपूर्ण परमात्मा कोलों। उन्हां दे कदमां दी खाक पावन है, पवित्र है। अखीर दे साहिब कहंदे ने, मंगर प्रभु आराधना बहु न जनमणिया। मंगर दे महीने विच जो परमात्मा दा उचारण करदे ने,
परमात्मा दे गुणां दा रमण करते ने, सत्संग विच बैठ के प्रभु की आराधना करते ने, मुड़ के उन्हां दा जन्म नहीं आउंदा, मरण नहीं आउंदा, सदीवी मिलाप नसीब हो जाता है। इस तरह मंगर दा महीना उन्हां लई सोभनीक ते सुहावना बन जाता है। मंगरे माहो भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण गुणवंती गुण रवे, मैं फिर ने चल भावे। निचल चतुर सुजान विधाता, चंचल जगत सबाया। ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे, प्रभ भाणे ता भाया। गीत नाद कवित कवे सुन, राम नाम दुख भागे। नानक साधन नाहे प्यारी, अब भगति फिर आ गए। तुखारी राग विच धन गुरु नानक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा मंगर दे महीने दा उपदेश संदेश। भला है मंगर दा महीना परमात्मा दे गुण अंक विच समा जान, हिरदे विच समा जान। दरअसल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विच गुरुआं दा मूल संदेश उपदेश ही यही है कि गुणां दा वस जाना यही प्रभु दा वसना है। सूरज अपना चानना वंडदा है किरना दे राही। फुल वास्तविक अपनी होंद नूं वंडदे ने महक दे राही, और इसी तरीके दे नाल फल अपनी होंद नूं वंडदे ने मिठास दे राही। हू बहू परमात्मा फैलदा है गुणा दे राही। सूरज दियां किरणां समूह ब्रह्मंड नूं छाउंदियां ने। हाँ, कोई अखां मीट लवे तां सूरज दे महा चानण तो संबंध टुट जाएगा। यही गल है, अगर कोई ईश्वर नूं याद ना करे तो प्रभु दे गुणां नाल संबंध टुट जाएगा। ईश्वर नूं याद करना साडी लोड़ है, ईश्वर दी लोड़ नहीं है। साडे याद करन नाल कोई ईश्वर ने गुणवान नहीं होना, महान नहीं होना, बल्कि असी तुच्छ तो महान हो जावांगे, मामूली तो समर्थ हो जावांगे। और चूंकि वह गुणां दा सागर है, उसदे गुणां नूं याद कर करके असी भी सागर बन जावांगे, महान बन जावांगे। साडे गुणां दे उचारण करन दे नाल वो महान नहीं है, बल्कि असी महान हो जाते हैं। इस वास्ते साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी ते साफ कहते हैं, अकारत गई उस मनुख दी जिंदगी जिसने प्रभु दे गुण गाए ही नहीं। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना, जिह बिद जल को भी। तो साहिब फरमान करते ने, जिस दे हिरदे विच पड़ी पूर्ण परमात्मा दे गुण समा गए, मंगर दा महीना उस लई शोभनीक है, महान है। मंगर माहो भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे, मैं फिर ने चिल भावे। जिहड़ियां गुणवंतियां ने, जिन्हां नूं गुणां नाल प्यार हो गया, गुणां दे चों रस आण लग पिया। दरअसल एक एक गुण मिठास नाल भरिया है, एक एक गुण अमृत है। दया अमृत है, प्रेम अमृत है, ज्ञान अमृत है, विशालता अमृत है, निर्भयता निर्वैरता अमृत है, शांति अमृत है, शील संयम अमृत है। इस तरह गुणी एक एक गुण
अमृत है ते गिणदे जाइए। अमृत दा ये सागर मनुख दे अंदर फैलदा जांदा है, वधदा जांदा है। जैसे जैसे वो गुणां नूं उचारण करदा है, गुणां दा अमृत उस दे अंदर भरदा जांदा है, भरदा जांदा है। जगत विच असीं देखदे हां कि कुछ भी प्राप्त करना होवे, चारों पासे रोकां भी बड़ियां ने। धन कमाना है तो बड़े मुकाबले ने, कुछ अगे लंघ गए ने, कुछ रोका ने, कुछ औकड़ा ने, कुछ कठिनाइयां ने। लेकिन नाम जपना है, परमात्मा दे गुण कमाने ने, संग्रह करने ने, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं। दरअसल राम दे नाम दी ते लुट ही करनी है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। किसे दा धन लुटीए, किसे दी संपदा लुटीए, कानून आड़े हथ आउंदा है, समाज रोकदा है, प्रतिष्ठा खत्म होंदी है। लेकिन किधरे राम नाम दी लुट नूं पै जाइए, लुटण नूं बड़ी शोभा बनदी है, लोक दे च भी परलोक दे च भी। जिस दे लुटण नाल शोभा बनदी है, जिहदा लुटना अंदरों सारा डकैतपना खत्म कर देंदा है ते दानी बना देंदा है, मनुख उस दौलत नूं लुटदा ही नहीं। दरअसल उस दौलत दे पिछे भजदा है, भजदा है, भजना ही इस नूं लुटेरा बना देंदा है, डकैत बना देंदा है, बेईमान बना देंदा है, जालिम बना देंदा है, शौम बना देंदा है। पर एक राम नाम दा धन ऐसा है, इनू लुटिए, लुटण वाला ही महान दानी बन जाता है, लुटण वाला ही महान दयालु बन जाता है, और लुटण वाला ही जगत की सेवा करन लग पैंदा है। और इस लुट दे ना समाज रोकदा है, ना कानून रोकदा है, रोका ने सिर्फ अपने अंदरों ही, अपने हंकार की रोक। अज्ञान एक रोक है, नासमझी एक रोक है। इस वास्ते मंगर दे महीने विच किधरे सत्संग नसीब होवे, परमात्मा दे गुणा तो मन प्रभावित होवे ते गुणा दा उचारण चल पवे, इस तरह फिर मनुख दा हिरदा गुणा दा सागर बन जांदा है। साहब इत्थे कहंदे ने जो गुणवान ने, गुणवंतियां ने, उते गुणा दा रमन करदे ने। ऐसियां गुणवान जीव इस्त्रियां नूं वेख के साहब कहंदे मैं फिर नेचल भावे, मैनू भी ये नेचल परमात्मा चंगा लगदा है। दरअसल मनुख दा मन परमात्मा ने ऐसा बना दिता है, ये दूजे तो प्रभावित होंदा है ते अपना प्रभाव देंदा है। अगर दूजा इस तो कुछ अगे है किसी भी तल ते, तो मनुख दा मन ऐसा है कि उसका प्रभाव कबूल करदा है, उसका असर कबूल करदा है। धर्म की दुनिया च कोई अगे लंघ गया है, उसका प्रभाव असी तां कबूल कर सकते हैं जो उसनूं वेखीए। उंज भी धार्मिक महापुरुष कहते हैं कि वेखना चाहिए है, धन नूं वेखना है तां अपने तो पिछे नूं वेख जो तेरे पिछे है, ताकि तेरे अंदर संतोख पैदा होए, सब्र पैदा होए। पर जे धर्म नूं वेखना है तां उसनूं वेख जिहड़ा तेरे नालों अगे है। धर्म की दुनिया विच जो अगे लंघ गया, जद तू अगे लंघे उन्हें वेखेगा तो खुद भी अगे लंघ सकेगा, जा सकेगा। और धन की दुनिया विच पिछे जो रह गया उसनूं वेखेगा तो तेरे अंदर सब्र भी पैदा होएगा, तेरे अंदर संतोख भी पैदा होएगा, फिर तेरे अंदर तृष्णा जो है नहीं पैदा होगी। पर अक्सर ऐसा होता है कि असीं धन नूं वेखना है तो अपने तो अगे नूं वेखदे हां तो बेसब्री पैदा हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है। और धर्म नूं वेखदे हां ते अपने तो पिछे नूं वेखदे हां भी की है, इन्ने चिर दा पाठ कर रहा है, इहनूं की लभे, इतनी मुद्दर दा गुरुद्वारे जा रहा है, इसनूं की प्राप्ति हुई है। मुत्तां लंघ गईयां इसनूं सत्संग करदे आया, अजे भी ठीक नहीं है। तो धर्म नूं वेखना है ते असीं अपने तो पिछे नूं वेखण लग पैंदे हां, खुद भी साडे कदम रुक जांदे ने, कई दफा खुद पिछे मुड़ जांदे हां। पर जे धन नूं वेखना है ते असीं हमेशा ही उसनूं वेखदे हां
जो साडे नालों बहुत अगे लंघ गया, बहुत अगे लंघ गया, तो अंदर बेसब्री पैदा हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है। नहीं, धर्म नूं वेखना है, और जद भी वेखना है तो अपने नालों जो अगे लंघ गए ने, जो संत महापुरुष अभ्यासी सत्संगी हो गुजरे अवतारी पुरुष, उन्हां दे वचन कलाम, वो जो अगे लंघ गए ने, उन्हां नूं वेखीए ताकि सुरत अगे चल पवे और मंजिले मकसूद ते पहुंचे। धन तू जिस मकान विच रह रहे हैं, उस तो भी खस्ता हाल विच कई रह रहे हैं, झुग्गी है, झोंपड़ी है, और ऐसे भी ने दरख्तां थले ने, और ऐसे भी ने कुछ अभागे जिन्हां नूं सायादार दरख्त भी नसीब ना होए। कुछ ते वेख पिछे, धर्म वेखना है तो जरूर अगां वेख। साहब आप भी कहते हैं, अगां को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा, नानक सिंह के आवार बहुर न होवी जन्म। तो साहब कहते ने गुणवानां नूं वेख के, गुण दे विच भिजियां होईयां अभ्यासी जीव इस्त्रियां नूं वेख के मैनू भी परमात्मा चंगा लगन लग पिया। मैनू भी वो जिहड़ा नेचल परमात्मा है उहदे नाल प्यार पै गया। नेचल चतुर सुजान विधाता, चंचल जगत सब आया। वो परिपूर्ण परमात्मा निश्चल है, सदैवी टिके होया है, और अति सियाणा है, विद्वान है, बोध है बहुत वड्डा, ज्ञान दा सागर है। फिर विधाता है, विधि दे लिखण वाला है, प्रालवत दे लिखण वाला है। चंचल जगत सबाया, सारा जगत ते चलायमान है, चंचल है, किते चलदा है, किते नासवंत है। ओ प्रभु नेचल है, ओ प्रभु सियाणा है, ओ प्रभु सुजान है, ओ प्रभु विधाता है। संगत करदियां पता चल गया जगत चलायमान है, जगत चंचल है, और एकदम बिरती चंचल जगत तो टुट के नेचल प्रभु दे चरना नाल जा जुड़ी। ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे, प्रभ भाणे तां भाया। कहंदे ने जैसे अभ्यास कीता सतसंग विच ते प्रभु नूं जैसे ये जीव इस्त्री पा गई, तो अंदर ज्ञान पैदा हो गया, अंदर गुण पैदा हो गए, सारे दे सारे गुणां विच रस पैदा हो गया, और इस तरह पूर्ण तौर पे सुरत जुड़ गई, ध्यान मगन हो गए। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने धर्म नो ध्यान साधना आखे, और जैसे ध्यान पकदा है, जुड़दा है, मनुख लीन आउंदा है, तो अनंत गुणां दी वर्षा उसते हो जाती है, और गुणां दे अमृत रस नाल वो भिज जाता है। साहब अगां चल के फरमान करते ने, गीत नाद कव कवे सुन, राम नाम दुख भागे। राम नाम दे गीत सुन के, राम नाम दा संगीत सुन के, राम नाम दी कविता सुन के, सुनदियां ही सुनदियां अभ्यासी दा सारा दुख बच गया। दरअसल आम नसर नालों शायरी नज़म ज्यादा प्रभावित करती है, गद नालों पद ज्यादा प्रभावित करता है, कविता का असर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यह इंज कह लो प्रभु गीत है, प्रभु संगीत है। जद भी किसी का मन नेचल आउंदा है, टिक जाता है, तो ये धुनियां गीत संगीत दियां उसके अंदरों उजागर होने लग पैंदियां ने। और ऐसा जो गीत संगीत जो आत्मा के गहरे तल तो निकले है, दूजे नूं प्रभावित भी करता है। तो जिस सत्संग विच ओ गीत ओ नाद जो आत्मा के गहरे तल तो निकले ने, जो गुरुआं दी बाणी है, महापुरुषां दे बोल ने, वचन ने, साहिब कहते इस तरह के गीत, इस तरह के संगीत, इस तरह दीयां कवितावां, इस तरह के बोल जे तू किधरे सुने, जिस दे राम नाम परोया होया, जिस गीत दे, जिस संगीत दे और जिस कविता दे, तो तेरा सारे दा सारा दुख भज जाएगा, नाश हो जाएगा। नानक साधन नाहे प्यारी, अब भगति फिर आगे। ऐसी जीव स्त्री परिपूर्ण परमात्मा नो
प्यारी लगती है, जिहड़ी अपने हिरदे विच हिरदे विच प्रभु प्यार नूं रखदी है, परमात्मा दे प्यार नूं रखदी है। गुण ते सारे ही महान ने, अमर ने, सजीवी ने, पर प्यार सिरमौर है। ये मेरू मणक है माला दा, ये सिरमौर मणक है। मन रे क्यों छूटे बिन पहा, ऐ बंदे किवें प्यार तो बिना बंधना तो छुटेगा। कहंदे ने तरह तरह दियां साग सब्जियां बनाइए, पर सिर्फ नमक ना पाइए, बाकी सब कुछ पाइए तो सब बेसुआदा। इस वास्ते गुरमत विच निहंग सिंह लूण नूं सर्वरस कहंदे ने। सारियां साग सब्जियां नूं रस देण वाला। होर अनेकां पदार्थ बनाइए मिष्टान, लेकिन उस विच मिठा शक्कर पाना भुल जाइए या पाइए ही ना, तो जितने वो पदार्थ ने स्वाद खो गया। भावें बड़ी मेहनत, भावें दूध है, भावें आटा है, भावें मैदा है, भावें घ्यो है, सारे पदार्थ सम्मिलित करके पदार्थ बने ने, पर शक्कर नहीं पाई, मिठा नहीं पाया, तो वो स्वाद नहीं आया। भावें सारे गुण इकट्ठे हो जान, पर जिन्ने चिर तक प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, वो आनंद नहीं बनता, वो खेड़ा नहीं बनता, वो खुशी नहीं बनती। मिठा सारे पदार्थां नूं महान बना देंदा है, जैसे नमक सारियां सब्जियां ते दालां नूं स्वादी बना देंदा है, प्यार सारे ही गुणां नूं महान बना देंदा है। इस वास्ते दुनिया भर दे महापुरुषां ने प्यार नूं अमर अवस्था आख्या और सब तो उच्ची अवस्था आख्या। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपना फैसला सुनाते ने, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो इस महीने का उपदेश करदे होया धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नानक साधन नाए प्यारी। ये साधना करने वाली जीव स्त्री परमात्मा नूं प्यारी लगी है, तो एक साधना। धर्म फोके ज्ञान ते नहीं खड़ा, धर्म फोके तर्क ते नहीं खड़ा, और धर्म फोके दिखावे ते नहीं खड़ा। धर्म साधना ते खड़ा है, और साधना लई तर्क नहीं चाहिए, साधना लई तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए। इस वास्ते सतगुरां दी बाणी दा फैसला कि जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। असी देख रहे हैं अनपढ़ बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, लॉयर वकील नहीं बन सकता, अनपढ़ मनुख साइंटिस्ट भी नहीं बन सकेगा। भौतिक विद्या लई पढ़ा लिखा होना बड़ा लाजमी है, लेकिन धर्म परमात्मा लई ये सिर्फ एक पुकार चाहिए, साधना चाहिए। एक बच्चे नूं अपने मां बाप नाल जुड़न लई किसी तर्क की लोड़ नहीं, किसी फोकियां दलीलां की लोड़ नहीं। बस वो बां पुकारे, बां पसारे, मां आखे, मां आखे, तो मां मां दे कहंदे आई मां गलोहड़ी च ले लैंदी है, उन्होंने चुक लैंदी है, उन्होंने कुछड़ दे च ले लैंदी है। इत्थे ते सिर्फ प्रभु नूं पुकारना है, फरियाद करनी है। तो ये फरियाद करनी, ये पुकारना एक साधना है। तो जब कोई पूर्ण तौर पर उसनों पुकारदा है, पुकार खाली नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। और ये भी हकीकत है कि आम जगत विच जैसे जैसे कोई मनुख वड्डा हुंदा जाएगा, उदा दरवाजा बंद हुंदा जाएगा, पर प्रभु दा दरवाजा कदी बंद भी नहीं होंदा। जैंदर आवत जाते हो हटके नाही कोय, सोदर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा हो। उसदे दर ते हर वक्त पुकार की जा सकती है, और उसदे दर ते पुकार हर वक्त सुनी जाती है। तो साहिब कहते हैं जो साधना करने वाली जीव स्त्री है, जैसे साधना विच लीन होंदी है, परमात्मा नूं प्यारी लगती है, वो अपना प्यार भरिया हिरदा
परमात्मा दे अगों रखदी है और इस तरह परमात्मा उसनूं अपने विच लीन कर लैंदा है। मंगर दे महीने दा गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी द्वारा ये महान उपदेश, ये महीना सुख ते सुहावना बतीत होवे। बस साधना चाहिदी है, जप चाहिदा है, तप चाहिदा है।